Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. I hope you all are studying well. Obviously, we have started studying in a very organized way and a very, in a directional way. All right. And what we are going to study, we will be covering 6, 7, and 8 Olympiads, and then NTC, NSC, JS, PRMO, and of course, your 6 to 10 school examination. All right. And all such thing will be very directional and very organized way, right? And this team you can see here will be helping you in achieving your goals, your targets, whatever you have set for this session, right? Now, if you want any study material, sample study material and DPPs, you can access them on our Telegram channel. You can join our Telegram channel through the obviously Telegram app, right? What you have to do is to search TTP07 for class 7 and any other respective classes. You can search for their respective course respective codes, right? तो this is the thing कि आप जब किसी भी स्टडी मटेरियल या फिर डीटीपी को एक्सेस करना चाहते हैं तो फिर आप ऑब्वियसली अपने इन कोड्स को अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग कोड्स को लिख कर आप लोग डेफिनेटली सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन देयर यू हैव इट. Most important thing I wanted to tell you, because we have brought a very good thing for anyone who wants to crack a competitive exam or who wants to crack their school examinations. तो उनके लिए जो है मैं बहुत important चीज़ आपको बताने जा रही हूँ. What is that कि आपको क्या करना है, www.talkingtextbooks.in वेबसाइट पर जाना है. वहाँ पर आपको अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे. You can choose any packages available there, and what you will be getting, such type of packages will be getting. All right, and you can see this is for foundation and Olympiad class 6 science and maths, right? तो this is the thing कि आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जो भी पैकेजेस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे. The important thing I am going to tell you is that what you will be getting in such packages. इतने जो packages हैं जो कि ये अभी 9,000 का package है, but I'll tell you how you can get in less cost, right? Now see, comprehensive study material, this is the first step. Obviously, अगर आप कुछ crack करना चाहते हैं, अगर आप कुछ achieve करना चाहते हैं, you should have a strategy. You should have all the resources for yourself. Obviously, in a very organized way, right? So this is the thing, comprehensive study material will be the first step in your journey, right? Recorded and live classes by the TTP experts. This is the thing कि if you want to go back on some topic or you want to repeat some topic or you think this topic is very weak for you, you can go back to the recorded lessons, you can watch them and you can learn anytime. And live classes, definitely it will be going to there. Homework tracking is a crucial thing where you will be submitting your homework through the Google Classroom. We'll tell you the homework, you do it. Now this is the important thing because very number of students, just skip the homework thing. They just study and they skip the homework thing. If you do homework, there will be higher chances for you to get a very good rank in any exam, right? Daily quizzes is a must because whenever a class is scheduled, whenever lecture is going on, after the lecture you will be accessing your quiz definitely related to the lecture so that you can get access what you have learned and what you have not, right? And the next one is periodic test paper. This is a very important thing because you should know the monster you are fighting. दैट इज द थिंग कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप फाइट करना चाहते हैं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कूल एग्जामिनेशंस को आप फाइट करना चाहते हैं, यू शुड नो कि भाई उसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उनको हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑल सच थिंग. यू विल बी वेरी मच लर्निंग थ्रू दी periodic test papers. These such things you will be getting in this package only, and this package is of 9,000. When you click on the buy now option, you will be getting on this page. On this page, if you write the code CYLIVE, then you will be getting a 30% discount. What is that? 2,700 will be deducted from the 9,000 and now your package will be 6,300. Now you are getting these much things in just 6,300 for the whole year, right? So definitely you will be getting much things in a very less cost. And what you have to do next is buy package, and then you will be getting options through which you can pay. If you have any query related to the things like what you have to do, if you are not getting the process, how to do that, you can call us on this number. All your queries will be resolved.
So this is the important thing I wanted to tell you. If anybody is serious toward their study, they should join this. I fully recommend this. All right. Now the next thing we are seeing, just take out your copies and books. We are going to study. So take this pledge. You will be watching the whole lecture. All right. You will be taking proper notes, and then you will be revising it on the daily basis. Revision is a must. I again said. Now this is our lecture. All right, and we are going to study trigonometric functions, right? ये trigonometric functions क्या होते हैं, अब तक तो कभी नहीं सुना था, और हम 7th क्लास में क्यों पढ़ना सीख रहे हैं. This is important. Let's see कि भाई क्या क्या हम लोग देखेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या होता था. बड़ा सा गंदा सा नाम है ना, इसका मतलब मैं तुमको बताती हूँ. सबसे पहले, उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी पहले हमें फंक्शन सीखना पड़ेगा. ठीक है, फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शंस कैसे काम करता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं. राइट, अब सी फंक्शंस. फंक्शन इज अ रूल, दैट मीन्स इट इज़ अ रूल. जैसे हमारे लॉज होते हैं, जैसे हमारे रूल्स होते हैं, दैट की कभी भी तेज स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी है, तो दैट इज़ अ रूल फॉर अस. राइट, तो उसी तरीके से फंक्शन इज अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसी का रूल होता है. ठीक है, इन विच वन इज अज्यूम टू बी डिपेंडेंट एंड द अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कितनी गंदी सी डेफिनेशन है. राइट, देखो इसको मैं बहुत इजीली एक अच्छे से एग्जाम्पल से तुम्हें समझाती हूँ. नाउ सी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मशीन लेंगे. ठीक है, now you can say it as a magic box, you can say it a machine, whatever you want to say it, you can call it. Right, I would like to say magic. ठीक है, I would like to say it's a magic box. तो ये है एक मैजिक बॉक्स. ठीक है, इस मैजिक बॉक्स की क्या खासियत है कि जब कभी भी तुम किसी नंबर को उस मैजिक बॉक्स में अंदर डालोगे, ठीक है, इसके अंदर भेजोगे, तो फिर क्या होगा. अगर तुमने यहाँ पे 5 को जो है इस मैजिक बॉक्स में ही डाल दिया, तो ये मैजिक बॉक्स अपना मैजिक करेगा और फिर आपको एक आउटपुट देगा. और वो आउटपुट क्या होगा, वो आउटपुट वो होगा जो ये मैजिक बॉक्स काम करता है. लाइक अगर ये मैजिक बॉक्स काम करता है कि भाई जो भी तुम नंबर मुझे दोगे उसमें ये 5 ऐड करके रिटर्न कर देगा. राइट, तो यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा 10. गॉट इट. तो दिस इज द वर्क ऑफ अ मैजिक बॉक्स कि भाई मैजिक बॉक्स कर क्या रहा है. आप उसमें कोई भी नंबर अंदर एंट्री करोगे, ठीक है, तो वो मैजिक बॉक्स क्या करेगा, उस नंबर को लेगा, उस नंबर में 5 ऐड करेगा एंड इट विल गिव यू बैक द नंबर आफ्टर एडिंग. राइट, तो दिस इज द वर्क ऑफ अ मैजिक बॉक्स. अब देखो यहाँ पे तुम्हें जो एक्स दिख रहा है ना, ये जो एक्स है, दिस इज द वेरिएबल. व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, उसका वैल्यूज चेंज होते रहना. ठीक है, नाउ सी दिस इज एक्स. यहाँ पे मैं जो भी नंबर एंट्री करूंगी, अभी मैंने 5 एंट्री करा, तो इस वक्त ये जो 5 है उसमें 5 ऐड हो गया जो कि मैजिक बॉक्स ने कर दिया और तुमको 10 दे दिया. ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, 2 दे देती हूँ, नंबर एंट्री कर देती हूँ 2. अगर मैं 2 एंट्री करती हूँ तो यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, इस एक्स की जगह पे अब ये 2 को रख देगा और 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैजिक बॉक्स है ये अपना जादू करते रहता है. ठीक है, और फिर हमको दे देगा ये 8. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मैजिक बॉक्स डूइंग इट्स मैजिक, दैट्स इट. राइट, लेकिन इसी से हम फंक्शन समझेंगे. कैसे फंक्शन समझेंगे वो भी देख लेते हैं. लेट्स से आपने जो भी नंबर भेजा, ठीक है, आपने जो भी नंबर इनपुट किया इस मैजिक बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर वो नंबर हमने बता दिया x कि भाई तुमने x भेजा. x कैन बी एनीथिंग, x कैन बी 5, x कैन बी 10, x कैन बी 2, x कैन बी 13, x कैन बी 1000, x कैन बी lakhs, any नंबर. ठीक है, दैट शुड बी अ नंबर दो. इफ यू वांट इनपुट अ बनाना, नॉट एन आउटकम विल बी कमिंग आउट. राइट, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि इस मैजिक बॉक्स में इतना सा रूल हमें ध्यान रखना है कि इसमें नंबर्स जाने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं. ये नहीं कि तुम पेंसिल भेज दो, रबर भेज दो, कुछ नहीं होगा. ठीक है, बल्कि ये मशीन और ख़राब हो जाएगी. नाउ सी, ये मैजिक बॉक्स एक्चुअली. नाउ सी, ये जो x है, दीज आर द नंबर्स 5, 2, 3.
ये नंबर्स है जो कि x हैं, ऑलराइट। तो ये जो x वैल्यू है, ये जो x ये है एक तरीके से ऐसा बॉक्स है जिसमें तुम कुछ भी नंबर दे सकते हो, कोई भी इनपुट दे सकते हो, राइट। तुम 5 दे दो तो x 5 बन जाएगा, तुम 2 इनपुट कर दो तो x 2 बन जाएगा, तुम 3 इनपुट कर दो तो x 3 बन जाएगा। तो फिर ये जो x है इसका मतलब कि हम कोई भी नंबर इस x को बना सकते हैं, तो इस x का कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हम जो भी इनपुट देंगे ये x वही वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए x क्या हुआ, एक वेरिएबल हुआ कि हम इसको जो भी नंबर दे रहे हैं ये वो नंबर ले रहा है और खुद को वही वैल्यू बता देता है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे आउटपुट पे। आउटपुट मतलब जो हमें रिजल्ट मिला है बाहर, इस मैजिक बॉक्स से बाहर जो आया है, दैट इज द आउटपुट। और ये जो आउटपुट है इसे हम क्या बोलेंगे, y, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसे क्या बोल दिया है, y बोल दिया है। क्यों y बोल दिया है, यहाँ पर ऐसे ही बोल दिया है, हमारी मर्जी थी तो y बोल दिया, दैट्स इट। नाउ सी, ये जो इनपुट है यहाँ पर, ये इनपुट आउटपुट एक्चुअली, ये जो आउटपुट है ये आपको बताते हैं कि आपने जब कोई नंबर इनपुट किया तो मैजिक बॉक्स ने अपना मैजिक किया और उस मैजिक के होने के बाद आपके पास जो नंबर आया दैट इज द आउटपुट, राइट। तो हम किस तरीके से इस पूरे मैजिक बॉक्स को मैथमेटिकली लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। मैजिक बॉक्स तो मैजिक है, अपना मैजिक करता रहेगा, बट हम इसको कैसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखो ये है आउटपुट जो कि है y, तो मुझे क्या कर देना चाहिए, ऐसे लिख देना चाहिए y, ठीक है। और ये जो आउटपुट है ये मुझे कैसे मिला, कैसे मिला मुझे ये आउटपुट, जब मैंने ये जो इनपुट है उसके अंदर +5 किया तब जाके मुझे ये आउटपुट मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको, इस आउटपुट को किसके बराबर रख सकती हूँ, ऐसे रख सकती हूँ। नाउ सी लेट्स चेक कि हमने क्या किया है, हमने ये सही भी किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अगर मैं इस x की जगह पर वापस से 5 रख देते हैं, ठीक है, ये वाला 5 हम वापस से रख के देखते हैं। x की जगह पे अगर मैं 5 रख दूं और ये वाला 5 तो पहले से है ही, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 10 मिलना चाहिए। क्या ये y की वैल्यू, क्या ये इनपुट हमारा 10 सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मैंने जो रूल लिखा है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, राइट। इसी तरह एक और बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। x की जगह पर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं और 5 ऐसा का ऐसा हम लोग रख देंगे, तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। इसका मतलब y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 7 मिल गई, और वही 7 मुझे यहाँ पे मिल रहा था। दैट मीन्स इस मैजिक बॉक्स को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया है कि ये मैजिक बॉक्स जो भी मैजिक कर रहा है वो उस इक्वेशन में ऑलरेडी हम लोगों ने मैथमेटिकली बता दिया है। सो दिस इज अ फंक्शन, literally this is a function. Why so? Because see, it is a rule, ये एक रूल है ऑफ, किसका रूल है, क्या किस चीज का रूल बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स कौन हुए, ये y और ये x, क्योंकि x तो कोई भी वैल्यू है, ये y कोई भी वैल्यू है, राइट। क्योंकि उस x पे से जो वैल्यू मिलती है मैजिक बॉक्स होने के बाद, जो y की वैल्यू मिलती है दैट इज y, जो कि चेंज हो रही है। सी दिस इज 10, दिस इज 7, तो ये चेंज हो रही है, इट्स ऑल्सो अ वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो इट इज अ रूल, दैट इज अ रूल, रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स, x और y के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट इज y इक्वल्स टू x प्लस 5 इज अ रिलेशन, ठीक है, इन विच वन इज अज्यूम्ड टू बी डिपेंडेंट एंड द अदर इंडिपेंडेंट। अब आप मुझे इसमें से बताइए कि इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। सबसे पहले तो इन दोनों का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। डिपेंडेंट का मतलब होता है एक दूसरे पे आश्रित रहना, राइट। डिपेंडेंट का मतलब जैसे तुम सुबह सुबह उठते हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती है एंड यू ईट दैट फूड, उस खाने को जब तुम लोग खा रहे होते हो तो उसको सामने रखने के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन योर मॉम कि भाई तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, राइट, तुम्हारे लिए लेकर आएगी और तब तुम उसको खाओगे। सो दैट इज द थिंग कि यहाँ पर आप अपनी मॉम पर डिपेंडेंट हैं खाना खाने के लिए, दैट इज द थिंग। यहाँ पर जो x है वो है इंडिपेंडेंट। वाई इंडिपेंडेंट, बिकॉज उसमें कुछ भी वैल्यू डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं x के अंदर 2 वैल्यू डाल दूँ, 6 डाल दूँ, 5 डाल दूँ, 4 डाल दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना मशीन प्रोसेस करेगा, राइट। ये वाली जो वैल्यू, जितनी भी यहाँ वाली जो वैल्यूज है ना, ये
आर इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी वैल्यू डाल दो, दीज आर इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स x जो है वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो y है ये इस x पे डिपेंड है। क्यों भाई? जो भी x डालेंगे, जो भी x का वैल्यू उस मैजिक बॉक्स में आएगा उसी के अकॉर्डिंग तो रिजल्ट निकल कर आएगा। सही बात है। तो यही तरीका है कि जो ये y है वो डिपेंड करता है x पे, कि x पे जो भी वैल्यू आएगी उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस होकर ये y की वैल्यू बताएगा, राइट? दैट्स व्हाई दिस y is dependent on x, dependent on x. now you're getting my point कि भाई कौन डिपेंड है और कौन इंडिपेंडेंट है, that is important. now first note it down very fast. now you got it. what is function? function is a rule, just a rule, and that's it. all right, and then what is independent variable? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है जिसमें हम कोई भी रैंडम वैल्यूज डाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि इंडिपेंडेंट पर डिपेंड होता है, राइट? जैसे यहाँ पे जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट, कोई भी वैल्यू तुम इस मैजिक बॉक्स में डाल सकते हो, कोई भी नंबर डाल सकते हो, राइट? लेकिन यहाँ पर जो y का वैल्यू निकल कर आएगा, मैजिक बॉक्स जो मैजिक करने के बाद तुम्हें नंबर देगा, इट डिपेंड्स ऑन x. x पे 5 था तो 10 आया, x पे 2 था तो 7 आया, x पे 3 था तो 8 आया. सो इट डिपेंड्स ऑन x. दैट्स व्हाई दिस इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट. ओके, दिस इज अ फंक्शन, इट्स अ रूल, राइट? अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ एंगल्स. वाई हम लोग एंगल्स क्यों पढ़ेंगे? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अब देखो एंगल का मतलब क्या हुआ? एंगल का मतलब हुआ कि तुम्हारी पोजीशन कितना चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट. जैसे चलो अब तुम लोग मानो दैट यू आर हियर एट ए. ठीक है, आप लोग ए पर हो, एग्जैक्ट ए पर हो. ठीक है, अब आप क्या करते हो? मूव करते हो बी पर. ठीक है, लेकिन किस तरीके से मूव करते हो कि तुम्हारी जो ये डिस्टेंस है, ये ओ ए वाली जो डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू ओ बी वाली डिस्टेंस. अगर तुम इस तरीके से बी तक जाते हो, ठीक है, तो दैट वुड बी लाइक यू कवर्ड एन एंगल. दैट इज कॉल्ड एन एंगल. कि जब कभी भी तुम अपना पोजीशन को चेंज करते हो अबाउट अ फिक्स पॉइंट, ये जो ओ है दैट इज फिक्स. ठीक है, ये ओ मूव नहीं कर रहा है. ठीक है, तुम ए पर थे, ठीक है, विच इज लाइक यू आर डी डिस्टेंस अवे फ्रॉम ओ. तुम यहां से कहाँ थे? डी डिस्टेंस अवे थे ओ से. ठीक है, अब तुमने मूव किया, लेकिन मूव कैसे किया? बी तक कैसे गए? इस तरीके से गए दैट यू मेंटेन योर डिस्टेंस इक्वली विद ओ. ठीक है, इट्स लाइक यू मूव इन अ सर्कल. जब कभी भी तुम सर्कल में मूव करते हो तो क्या होता है, जो सर्कल का सेंटर होता है वो तो फिक्स होता है, राइट? और तुम्हारा और जो सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो भी फिक्स होता है. अगर ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स रहे और तुम मूव करते जाओ इस तरीके से, दैट इज फिक्स, और हम मूव करते जा रहे हैं, तो दैट मीन्स यू कवर्ड एन एंगल, राइट? नाउ यू हैव कवर्ड एन एंगल, दिस इज द एंगल. ऑलराइट, दैट मीन्स जब कभी भी हम कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करें लेकिन एक फिक्स पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस जो मेंटेन करके रखें और उसके बाद हम मूव करें, दैट मीन्स वी कवर्ड एन एंगल, राइट? अब देखो ये जो एंगल होता है इट कैन बी टोटली सर्कुलर. डेफिनेट सी बात है, तुम पूरा सर्कल राउंड करोगे यू विल बी गेटिंग अ होल सर्कल. अब देखो यहाँ पर जब कभी भी ये पॉजिटिव एंगल और ये नेगेटिव एंगल तुम्हें समझने की जरूरत है कि व्हेन यू आर मेकिंग अ पॉजिटिव एंगल एंड व्हेन यू आर मेकिंग अ नेगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल कैसे? पॉजिटिव एंगल तब बनेगा जब तुम ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, जब कभी भी जब तुम पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो यू विल बी मेकिंग प्लस एंगल.
अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में कौन मूव करता है, क्लॉक की जो हैंड्स होते हैं ना, मिनट हैंड और आवर हैंड, वो जो मूव करते हैं तो वो इस तरीके से मूव करते हैं, राइट। अब वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ऐसे मूव कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ अ क्लॉक, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मिनट हैंड, आवर हैंड, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट मूव करने लग जाए तो दैट इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स आप पहले 12 पर थे, 12 से आपने क्या किया, 11 बजाए, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, यू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो सी यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव एक्स से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से जब हम मूव कर रहे हैं दैट मीन्स आप ऐसा ज्यूम कर सकते हैं दिस इज 3। अगर तुम इसे एक क्लॉक मानो, ठीक है, अगर तुम इसे एक क्लॉक मानो तो दिस इज 3, राइट। देयर शुड बी 12, देयर शुड बी 6 एंड देयर शुड बी 9। अब देखो यहाँ पर 3 था और तुमने क्या किया, इस 3 से तुम 1 तक गए, यू आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, राइट। दैट मीन्स यू आर मेकिंग अ पॉजिटिव एंगल। बट इफ यू मूव इन clockwise direction, if you move in clockwise direction, see clockwise direction कैसे, यहाँ पर 3, यहाँ पे 12, 9, 6, this is a clock, imagine it to be a clock। अब क्या हो रहा है, यहाँ से x से जा रहा है किसकी तरफ, x is what, x is 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ क्लॉक x should be 3। अब 3 से कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो इट इज इन द क्लॉक, इज इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, राइट। दैट मीन्स अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनता है दैट विल बी द नेगेटिव एंगल, एंड अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनता है दैट वुड बी व्हाट, अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट वुड बी अ पॉजिटिव एंगल, नॉट क्लॉकवाइज, दैट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ऑलराइट। तो दैट वुड बी द पॉजिटिव एंगल। तो आपको दो एंगल के बारे में पता चला, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव एंगल मिलेगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको नेगेटिव एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये तो था एंगल की बातें। अब हम देखते हैं कि भाई इन एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं। एंगल्स को मेजर करने के लिए आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, नंबर वन आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है, वो ये पता होना चाहिए कि वी डू नो व्हाट इज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, डू वी नो। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो दिस प्लस विल बी 90 डिग्री, ठीक है। हमेशा जब कभी भी टू लाइंस इस तरीके से मिलती है परपेंडिकुलर तो दैट वुड बी अ 90 डिग्री, राइट। 0 डिग्री एंड देन 90 डिग्री एंड देन 180 डिग्री, वेल इट नॉट स्ट्रेट, बट अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है तो इट वुड बी 180 डिग्री, ठीक है। तो सी दिस इज 0, एक्स पर था तो 0 था, जैसे ही एक्स से बिल्कुल पॉजिटिव, बिल्कुल 90 डिग्री पे चला गया, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। एंड देन अगर वो बिल्कुल इधर ऐसे घूम के बिल्कुल सीधा हो जाए तब ये वाला जो एंगल ये फिर से 90 डिग्री, ठीक है, ये फिर से 90 डिग्री और ये वाला फिर से 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमने जो ग्राफ में 4 लाइंस पढ़ी थी कि भाई x है, पॉजिटिव x है, पॉजिटिव y है, नेगेटिव x है, नेगेटिव y है, ये सभी लाइंस क्या कर रही हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनाती हैं, ठीक है। पॉजिटिव x पॉजिटिव y 90 डिग्री, पॉजिटिव y नेगेटिव x 90 डिग्री, नेगेटिव y नेगेटिव x नेगेटिव y 90 डिग्री, नेगेटिव y पॉजिटिव x 90 डिग्री। तो मतलब इन सभी के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, राइट। ओके, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि हमें क्या करना है, वी शुड नो 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक है, ये हमने बता दिया। इट्स अ थिंग कि जब हम कभी भी डिग्री से दूसरे किसी यूनिट में चेंज करते हैं एंगल्स को, तो दूसरे यूनिट में यानी रेडियन यूनिट में इट शुड बी पाई बाई 2, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, जैसे आप लोगों ने सीखा होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर,
तो 1 सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर, है ना। उसी तरीके से ये जो डिग्री है दैट इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन, और वो कितना हो गया है, π/2 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ इसकी हेल्प से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ सी, हमें देखना है कि जो ग्रीन एरो है, ये ग्रीन एरो ने क्या किया, स्टार्ट किया यहाँ से, x से स्टार्ट किया। ये जो ग्रीन एरो था ना, उसने x से स्टार्ट किया, और ये पिंक एरो आपको बता रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया। कैसे, देखो ये पिंक एरो आपको बता रहा है कि x से स्टार्ट किया, पूरा सर्कल लिया, सर्कल लिया, सर्कल लिया, और उसके बाद अब वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे उसने सबसे पहले तो एक कंप्लीट सर्कल लिया। कंप्लीट सर्कल का मतलब है 90 90 90 94 टाइम्स, राइट। कंप्लीट सर्कल का मतलब है 90 90 90 94 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, π/2 फर्स्ट वाला, जब वो x से y तक गया तो पिंक एरो की तरफ जाते जाएंगे अपन, ठीक है। तो x से y तक गया, दिस इज पिंक एरो, π/2। अब अगेन π/2 फॉर y एंड नेगेटिव x में अगेन π/2, ठीक है। फिर एक और π/2 किस लिए आएगा, जब वो नेगेटिव x से नेगेटिव y तक जाएगा, एंड अगेन एक और π/2 किस लिए आएगा, जब वो नेगेटिव x से पॉजिटिव y जाएगा। And then the extra angle π/3 is the extra angle covered by it, ठीक है। तो ये जो है, ये टोटल एंगल, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, सिंप्लीफाई कर दूं, तो मुझे टोटल एंगल मिल जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल हम LCM का यूज करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। नाउ सी, इन दोनों का 2 और 3 का LCM होगा 6, तो क्या करेंगे, 2 को 6 से कैंसिल आउट करेंगे। 2 में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स, तो हम उसको पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट वुड बी 3π। अगेन 2 कितने टाइम्स होता है, 6, 3 टाइम्स, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से, ऊपर वाले न्यूमरेटर से, ठीक है। फिर ये 2 है और ये 6, 2 में कितने टाइम्स आता है 6, 3 टाइम्स, तो हम उसको वापस से क्या करेंगे, जो पाई है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, यानी 2 में अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स वी विल बी गेटिंग 6, तो हम इस 3 को क्या करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट वुड बी 3π। अब देखो हमारे पास आया 3 में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, 3 2 ज़ा 6, राइट। तो इस बार हम क्या करेंगे, पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट वुड बी 2π, ठीक है। नाउ क्या कर लेते हैं, 3π 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 3π, देखिए कैलकुलेट कर लेते, सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 3 6 9 12 13 14, तो इट वुड बी 14π/6, ठीक है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर ले, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम इसे कर लेते हैं 7π/3। वाई सो, बिकॉज 2 7 ज़ा 14 एंड 2 3 ज़ा 6, कैंसिल आउट हो गया, तो इट वुड बी 7π/3। दिस इज द एंगल, दैट्स इट, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट्स इट, हमें इतना ही करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से सिंपली हम इसमें भी देखेंगे, यहाँ पे जो ग्रीन एरो था ना, इस ग्रीन एरो ने क्या किया, देखो यहाँ पे जो ग्रीन एरो था ये गया कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में ये गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो यहाँ से दिख रहा है ना एरो, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ऐसे घूम कर यहाँ तक गया है ना। ये ग्रीन एरो ने स्टार्टिंग यहाँ से किया था और ये घूम कर जो है वहां तक चला गया, तो इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो इसका मतलब ये जो एंगल है मुझे देखते ही पता चल गया है, दिस इज अ नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो मैं पहले ही क्या करूंगी, एक नेगेटिव का साइन मेंशन कर दूंगी। अब देखते हैं हम क्या किया इसने, सबसे पहले इसने x2 - y यानी 90 डिग्री कवर किया, दैट मीन्स π/2, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, π/2 लिख देंगे। अब देखेंगे -y से -x गया, तो इसका मतलब इसने π/2 अगेन ट्रेवल किया, तो इसका मतलब हमने वापस से क्या लिख दिया है, π/2 दैट इज 90 डिग्री, राइट। अब एक्स्ट्रा एंगल कितना किया, π/4, एक्स्ट्रा एंगल उसने कितना लिया, π/4, दैट मीन्स हमको क्या करना है, सिंपली π/4 ऐड कर देना है। दिस इज द एंगल ट्रेवल बाय दिस ग्रीन सर्कल, दिस ग्रीन एरो एक्चुअली, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे इसका, दैट विल बी 4। देखो 2 में 2 टाइम्स आता है 4, दैट मीन्स हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट विल बी 2π।
फिर अगेन 2 में कितने टाइम्स आता है 4, 2 टाइम्स, तो हमको न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट वुड बी 2 पाई प्लस अगेन 4 टाइम में कितने टाइम्स होता है 4, 1 टाइम्स, तो हम पाई में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी द सेम नंबर, तो ये आ जाएगा सिंपल पाई। अब देखिए हम कैलकुलेट करें कितना होगा 2 और 2, 4 प्लस 1 5, तो वी विल बी गेटिंग 5 पाई बाय 4. This is the final answer we will be getting, and this will be the angle covered by this green arrow, right? This is a negative because it is in clockwise direction. ठीक है, अब फटाफट से इसको नोट कर लो। ओके, तो अब हम फाइनली सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स एंड फंक्शंस। दिस इज द थिंग, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। अब देखो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? देखो ये जो है ना ट्रिगोनो, ठीक है, ये जो वर्ड है ना ट्रिगोनो, ठीक है, ये जो ट्रिगोनो है इसका मतलब होता है ट्रायंगल्स, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है। अब जो ये मैट्रिक वर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है मैट्रिक, इसका मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक है इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि आप क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल्स में कुछ ना कुछ मेजर कर रहे हैं, या तो उसका साइड मेजर कर रहे हैं, या तो उनके बीच का एंगल मेजर कर रहे हैं, या तो फिर उन दोनों के बीच का कुछ भी मेजर कर रहे हैं, एंगल साइड और दोनों ही मेजर कर रहे हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट थिंग ये हमको डिस्कस करनी है कि जब कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही आएगा। क्यों आएगा राइट एंगल ट्रायंगल? बिकॉज उसी के अंदर 90 डिग्री होता है, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिगोनो में वी विल यूज ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को ही मेजर करेंगे, को ही कंसीडर करेंगे, एंड दैट्स इट। तो देखो मैंने क्या किया है, एक बड़ा सा सर्कल बनाया है, ठीक है, और उसमें तुम्हें दिख रहा है ऑरेंज कलर का एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल का मतलब होता है कि इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा ही होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द राइट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है वो 90 डिग्री, सी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, वो मैं तुम्हें ब्लैक कलर से बताऊंगी। अब देखो ये जो 90 डिग्री वाला एंगल हुआ, ये तो हमको पता है कि ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, 1 2 3, ट्रायंगल 3 एंगल, राइट। तो देखो 3 एंगल हो गए जिसमें से एक 90 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो जो ये 90 डिग्री वाला एंगल है ना, उसके ठीक अपोजिट साइड में हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कई लोग इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस। अब देखेंगे 90 डिग्री के ठीक अपोजिट, व्हाट इज दैट, हाइपोटेनस। दैट मीन्स ये वाली जो लाइन है ना, इसमें जितना लेंथ होगा, ये वाली जो लाइन होगी, दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो एंगल है, अब अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ठीक है, हमको तो पता नहीं है कौन सा एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है। अब मैंने इसको थीटा लिख दिया, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया इट्स अ थीटा, आई डोंट नो क्या है एग्जैक्ट, बट आई एज्यूम इट एज थीटा, कि चलो थीटा है, दैट्स अ शो कि भाई इट्स एन एंगल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से, ठीक है। अब ये थीटा वाला जो एंगल है, जिस आर्म पर बैठा हुआ है, ये थीटा वाला एंगल जिस आर्म पर बैठा हुआ है, ट्रायंगल की 3 आर्म्स होती है ना, उसमें से एक आर्म तो हमने बता दिया हाइपोटेनस, जो एक और आर्म है वो जिसके ऊपर थीटा बैठा हुआ है, दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बेस, राइट, बेस लाइक बिल्कुल बेस, उसके ऊपर वो बैठ जाता है, ठीक है। तो थीटा इस बेस के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। और जो बचा, जो एक लाइन बची, जो एक आर्म बची, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर,
ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर। ये एक ही वर्ड है पर जगह नहीं थी तो जो है मुझे ऐसे लिखना पड़ा, पर आप लोग समझ जाएंगे, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे, ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई, ठीक है, ये मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, एक राइट एंगल ट्रायंगल की 3-4 चीजें बताई। कैसे बताई कि भाई जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, नंबर 1, उसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होता ही होता है, ठीक है। हमने यहाँ एज्यूम कर लिया, हमने यहाँ पता कर लिया एक्चुअली में कि दिस इज द 90 डिग्री, राइट। अब इस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो आर्म होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद एक एंगल हमने थीटा लिया जो कि हाइपोटेनस के बीच में है। अब ये जो एंगल है जिस आर्म के ऊपर बैठा हुआ है दैट इज कॉल्ड बेस, और जो आर्म बची हुई है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंपल 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 आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज हाइपोटेनस, अपोजिट टू द 90 डिग्री, व्हाट इज बेस, जिस आर्म के ऊपर एंगल बैठा हुआ है, एंड परपेंडिकुलर, जो बची हुई आर्म है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम इसमें किस तरीके से फायदा उठाएंगे इसका देखेंगे। अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं हाइपोटेनस के लिए h लिखूंगी, ठीक है, हाइपोटेनस के लिए मैं h लिखूंगी, मैं लिखूंगी b फॉर बेस एंड मैं लिखूंगी p फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, PBPHHB, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इट्स अ ट्रिक, ठीक है, इट्स अ ट्रिक। कैसी ट्रिक है, क्या बता रही है ये तुमको, ये बताती कैसे याद रखना है तुम्हें इसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट मीन्स P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद, H फॉर हर, B फॉर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इसके आगे की लाइन है सोना चांदी तोले, ठीक है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे हम इससे कैसे पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जाके जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखने वाले हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 बेसिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है, 6 बेसिक फंक्शंस होते हैं, और ये 6 के 6 इस ट्रिक से हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। कैसे रिमेंबर कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, पूरा ही लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब देखो P अपॉन H, राइट, P अपॉन H हम लोग कैसे देख रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस S से, यानी ये जो पहला S आ रहा है, दिस फर्स्ट S इज व्हाट, साइन थीटा, दैट इज P अपॉन H। मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ना P अपॉन H, दिस इज साइन थीटा, दैट मीन्स वो P यानी परपेंडिकुलर, H वो हाइपोटेनस, ठीक है। तो P अपॉन H इज साइन थीटा, फर्स्ट वाला, ठीक है। अब आता है कौन, C, C इज कॉस थीटा, राइट। अभी जो कॉस थीटा है ना, इस कॉस थीटा में हम लोग दूसरा लेंगे B अपॉन H, B अपॉन H, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा B अपॉन H, ठीक है। तो आपको पता चला। अब आता है T, T से कौन होगा, टेन थीटा, ठीक है, जो कि लास्ट P अपॉन B हो जाएगा, P अपॉन B हो गया। तो आपको क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से तो ये याद रखना है, सोना चांदी तोले से S फॉर साइन थीटा, C फॉर कॉस थीटा, T फॉर टेन थीटा, ठीक है। इस तरह हमको रिमेंबर करना है। अब देखो ध्यान से, अब 3 और एंगल्स, 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि ठीक इसके अपोजिट होते हैं। कैसे अपोजिट होते हैं, देखो साइन का ठीक अपोजिट कौन होता है, कॉसेक थीटा। इसको पलट दो, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे आ जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉस का ठीक उल्टा कौन होता है, सेक थीटा, H ऊपर B नीचे,
ठीक है, अब देखो 10 में क्या होता है, 10 में क्या, 10 का जो है उल्टा होता है cot थीटा, ठीक है, इट वुड बी cot थीटा, इसका ठीक अपोजिट, बी ऊपर पी नीचे, बी ऊपर पी नीचे। तो ये जो है ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस and these are the functions which are useful in the upcoming lectures, upcoming classes 9, 10 में सब आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो ये सोना के लिए साइन थीटा, चांदी के लिए कॉस थीटा और तोले के लिए टेन थीटा। और फिर आपको क्या करना है, ठीक इनका उल्टा कर देना है, पी अपॉन बी है तो बी अपॉन पी हो जाएगा, बी अपॉन एच है तो एच अपॉन बी हो जाएगा, पी अपॉन एच है तो एच अपॉन पी हो जाएगा, दैट्स इट। ऐसे करके आपको 6 फंक्शन जो हैं रिमेंबर करने हैं। अब आप ये बी एच में कंफ्यूज नहीं होइए, क्यों, क्योंकि बी तो ये रहा, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस, सिंपल इजी राइट। अब देखेंगे फटाफट से पहले तो नोट कर लीजिए, चलिए अब मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ, ठीक है, ये टेबल अभी तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल आपको फ्यूचर में ज़रूर दिखाई देगी कि भाई ऐसी कैसी टेबल है, क्या करना चाहिए, ये उन्हीं का वैल्यू है, ठीक है। वो जो थीटा है वो एक एंगल है राइट, वो थीटा जब 0 बन जाएगा तब इस साइन का क्या वैल्यू होगा, दैट मीन्स साइन 0 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, 0। वो वाला थीटा जब 30 डिग्री बन जाएगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू बन जाएगी 1/2, दैट मीन्स क्या, P अपॉन एच। अब देखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री में जब वो थीटा 45 डिग्री बन जाएगा तो साइन 45 डिग्री विल बी 1/√2। इसी तरीके से 60 डिग्री, ठीक है, जब वो थीटा 60 डिग्री बन जाएगा तब हमें मिल जाएगी √3/2, यानी साइन 60 डिग्री √3/2। फिर आ जाएगा साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ एक चीज इंपॉर्टेंट तुमको मिलनी चाहिए, क्या मिलनी चाहिए, ये देखो 0, ठीक है, और ये देखो 0, ठीक है, ये पता चल गया 1/2, ठीक है, और ये देखो 1/2, फिर देखो 1/√2, 1/√2, फिर √3/2, √3/2, वो वाला 1, वो ये रहा, दैट मीन्स ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं इसी का रिवर्स ऑर्डर कॉस थीटा बन जाता है, ठीक है। अब इसी तरीका बन गया। अब हमको कैसे 10 कैसे मिलेगा, ये चीज तो ठीक है, हमको सिंपल पता चल गई कि भाई अगर तुम्हें सिर्फ ये साइन थीटा वाली लाइन याद हो जाती है तो तुम लोग कॉस थीटा वाली को क्या कर सकते हो, अपोजिट पलट के लिख सकते हो इजीली, ठीक है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब क्या कर रहे हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक अपोजिट राइट। अब देखो तुम 10 थीटा को कैसे लेकर आओगे, 10 थीटा को लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू गॉट द वैल्यूज ऑफ 10 थीटा। तो इससे अभी के लिए सिर्फ इतना ही टेबल जो है तुम अगर याद कर सको तो इट वुड बी वेरी गुड, ठीक है। अगर याद नहीं भी होता है तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लासेस में वापस से देखेंगे, बट अगर अभी याद हो जाए तो ऑल दी बेस्ट, वेरी गुड, इट्स सो गुड फॉर यू, राइट। सो टेक इट स्क्रीनशॉट। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो अभी तक हमको नेसेसरी है, राइट। देखेंगे हम लोगों ने अभी तक फंक्शंस देखा था, इट्स लाइक अ मैजिक बॉक्स, इट्स लाइक अ रूल कि भाई किस तरीके से दो वेरिएबल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें से एक इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होता है, राइट। सेकेंड हमने क्या पढ़ा था, एंगल्स पढ़े थे कि भाई एंगल्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम उनको मेजर कर सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। जो प्लस होता है दैट इज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और जो माइनस होता है दैट इज इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब हमने फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लोग को क्या जरूरी था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले
सोना चांदी तोले। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स इट। अगर आपको ये याद हो जाता है इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री के 6 बेसिक फंक्शंस रिमेंबर हो चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद जाके जो है ये टेबल आती है जो कि बहुत ईजी है, लर्न करनी बहुत ईजी है, ठीक है। आपको ट्रिक पता चल चुकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल टूल्स। यहाँ पर हमारा मैथमेटिकल टूल्स फिनिश हो रहा है। हमें जितनी भी नेसेसरी चीज़ें थी हमारे फिजिक्स पे पढ़ने के लिए वो हम लोगों ने सीख ली हैं। अब हम जो है सेकेंड चैप्टर से रियल ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नॉट द रियल ट्रिग्नोमेट्रिक, रियल फिजिक्स हम लोग जो हैं, जो हमारी आसपास की ज़िंदगी में फिजिक्स है, हम वो पढ़ना शुरू करेंगे, राइट। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, मेजरमेंट एंड ऑल, ये सब हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग क्या करना है, अब आपको सिंपली जो हमने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे इनको वापस गो थ्रू करना है, क्विज अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। जो हमारा क्विज आता है, बाई वीकली क्विज आता है, वो अटैम्प्ट करनी है, ठीक है। होमवर्क कंप्लीट करना है। आई शुड गिव यू द होमवर्क, लेट मी गिव यू द होमवर्क फर्स्ट। आपको होमवर्क करना है और होमवर्क में क्या है, एक्सरसाइज 2 का आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, that is your homework for today. Do it, submit on Google Classroom, all right, and then I will be checking, all right, and this will be the things हम लोगों ने जो कुछ भी अभी तक सीखा है, do it, revise it again and again। आपको मास्टर कर लेना है मैथमेटिकल टूल्स में, राइट, आपको बिल्कुल कर लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। जिन भी लोगों को आप बताना चाहते हैं उन सबको बताओ कि तुम किस तरीके से एक ऑर्गेनाइज वे में स्टडी कर सकते हो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स पर, ऑलराइट। एंड प्लीज़ डू इट, शेयर अ लॉट, ताकि सभी बच्चों को पता चले, तो जो भी बच्चे अपने टारगेट अचीव करना चाहते हैं उन्हें थोड़ी हेल्प मिले, right? And do not forget to click on the bell icon so that you will be notified for our upcoming videos. Thank you so much for watching.